بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی کے مزید 9 منتخب ارکان کی پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت 9 منتخب ارکان کی مریم نواز سے ملاقات ہوئی قائد مسلم لیگ نون پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا نون لیگ میں شمولیت کے اعلان پر مریم نواز کا 9 منتخب ارکان کے فیصلے کا خیر مقدم پی پی 132 سے سلطان باجوہ پی پی 225 سے شازیہ ترین بھی نون لیگ میں شامل ہو گئی ہیں جبکہ پی پی 289 سے محمود قادر پی پی 288 سے حنیف پتافی نون لیگ میں شامل ہوئے پی پی 94 سے تیمور لالی اور پی پی 283 سے علی اصغر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں اہم یہ خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے مزید 9 منتخب ارکان کی پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت 9 منتخب ارکان کی مریم نواز سے ملاقات ہوئی قائد مسلم لیگ نون پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا خبر یہ ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں اہم بریک تھرو آزاد اراکین پنجاب اسمبلی نے اپنا فیصلہ کر لیا عبدالعلیم خان سے ملاقاتیں پنجاب اسمبلی کے 4 آزاد اراکین نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے عبدالعلیم خان پر اعتماد کا اظہار کیا پارٹی کے ساتھ چلنے کا عہد بھی کیا گیا ہے اہم یہ خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں اہم بریک تھرو سامنے آیا ہے آزاد اراکین پنجاب اسمبلی نے اپنا فیصلہ بالآخر کر لیا ہے عبدالعلیم خان سے ملاقاتیں پنجاب اسمبلی کے 4 آزاد اراکین نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے عبدالعلیم خان پر اعتماد کا اظہار کیا پارٹی کے ساتھ چلنے کا عہد بھی کیا گیا ہے اہم یہ خبر ہے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں اہم بریک تھرو ہوا ہے اور جس میں آزاد امیدواروں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا مسلم لیگ نون نے پنجاب میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے لیے مریم نواز کو نامزد کر دیا بھرپور سیاسی جدوجہد کے بعد پہلی بار رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہونے کے بعد پہلی ہی اننگز میں مریم نواز کو بڑا اعزاز مل گیا مریم نواز تخت لاہور کی بڑی ذمہ داری نبھائیں گی لیاقت علی رپورٹ کریں گے سیاسی جدوجہد اور خدمات کا اعتراف عوام نے پنجاب میں مریم نواز کو نواز دیا مریم نواز پنجاب میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نامزد جارحانہ سیاست لہجہ بھی بھرپور سیاسی حکمت عملی بھی شاندار سیاست کے میدان میں نکلی تو آگے ہی بڑھتی گئیں اور بالآخر جماعت کو بھی نمبر 1 بنا دیا اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوا لیا مریم نواز نے 2012 میں سیاست میں انٹری دی مسلم لیگ نون نے مریم نواز کو عام انتخابات 2013 کے دوران ضلع لاہور کی انتخابی مہم کا منتظم مقرر کیا مریم نواز کو 22 نومبر 2013 کو وزیر اعظم یوتھ پروگرام کا انچارج مقرر کیا گیا نوجوانوں کو لیپ ٹاپ اور اسکالرشپس دلانے پارٹی کو یوتھ میں مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا 1999 میں نواز شریف حکومت برطرف ہوئی تو مریم نواز پر بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے 4 ماہ تک گھر میں نظر بندی کے بعد سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا نومبر 2011 میں نواز شریف نے سیاست کے میدان میں قدم رکھنے کا گرین سگنل دیا مریم نواز نے تعلیمی اداروں میں اپنی تقاریر سے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا مریم نواز کو بی بی سی کی رپورٹ میں 2017 کے لیے دنیا کی 100 بااثر خواتین میں شامل کیا گیا پاناما پیپرز کے فیصلے کے بعد مریم نواز نے جارحانہ سیاست اپنائی مریم نواز سڑکوں پر نکلی تو کراؤڈ پولر کہلائیں اپنے سیاسی مخالفین کو جرأت سے للکارا مریم نواز اپنے والد نواز شریف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئیں اور مستقبل کی سیاسی جانشین کہلائیں 2018 کے انتخابات میں انہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا مگر انہیں اس سے قبل ایون فیلڈ ریفرنس میں 7 سال سزا سنا دی گئی مریم نواز کو 10 سال کے لیے نااہل بھی قرار دیا گیا اور وہ الیکشن نہ لڑ سکیں جیل میں بی کلاس کی سہولت لینے سے انکار کیا اور عام قیدیوں کی طرح قید کاٹی مریم نواز نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی مگر مزاحمت کے بیانیے سے پیچھے نہ ہٹی مریم نواز نے اپنی والدہ کلثوم نواز کی غیر موجودگی میں لاہور میں ان کا ضمنی الیکشن بھی لڑا اور انہیں بڑے مارجن سے فتح دلائی تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب لیگی قیادت جیلوں میں تھی تو مریم نواز نے پارٹی انتخابی سیاست کا بھی محاذ سنبھالا ضمنی انتخابات کا میدان لگا تو مریم نواز کی قیادت کے باعث ہی پنجاب کے تمام قومی اور صوبائی حلقوں میں نون لیگ کو کامیابی ملی یہی نہیں خیبر پختونخوا میں بھی نون لیگ نے بعض حلقوں میں میدان مارا کراچی میں سیاسی جدوجہد کے لیے پہنچی تو ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑ کر ان کے خاوند کو گرفتار کیا گیا مگر وہ پھر بھی خوف زدہ نہ ہوئی نئے مقدمات میں خود کو پیش کرنے کے لیے ٹھوکر نیاز بیگ آفس پہنچنے پر ان کے قافلے پر فائرنگ اور پتھراؤ کیا گیا لیکن وہ اپنے بیانیے سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹی مریم نواز کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی عائد ہوئی لیکن وہ ملک بھر میں ریلیاں نکالتی رہیں اور جلسوں میں حکمران وقت کو للکارتی رہیں سیاسی مخالفت میں ان پر حکومت نے ایسے مظالم ڈھائے کہ ECL میں نام ہونے کی وجہ سے والد سے 3 سال تک نہ مل سکیں اور تو اور اپنے بیٹے کی شادی میں بھی شریک نہ ہو سکیں مسلم نون کی قیادت نے مریم نواز کی صلاحیتوں اور لیڈرشپ کے اعتراف میں انہیں پارٹی کا چیف آرگنائزر اور
सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया। बाप की जानशीन बेटी ने सियासत की बसात पर ऐसी चालें चली कि वालिद को वतन वापस लाईं और 2024 का इंतखाबी महाज भी दबंग अंदाज में संभाला और मुस्लिम नून को पंजाब और वफाक में सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने वाली जमात बनाया। अब मामला हुकूमत साजी का आया तो पार्टी क़यादत ने मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद किया। यूं पाकिस्तान और पंजाब की नई सियासी तारीख रकम होने जा रही है, जिसमें मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ उठाएंगी। नामी कोई बगैर मुशक्कत हुआ नहीं, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। पंजाब असम्बली के सहवान ने मर्द कायदे अवान तो बहुत देखे, लेकिन पहली बार खातून लीडर वज़ीर आला पंजाब का मनसब संभालेंगी। बिलाशुबा हम कह सकते हैं कि पंजाब में अब मरियम नवाज का दौर शुरू होने जा रहा है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। आम इंतखाबात के बाद पंजाब में हुकूमत साजी का मरहला, जोड़ तोड़ का मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब पंजाब काबीना के लिए नामों को हतमी शक्ल दी जा रही है। पंजाब काबीना में वज़रा की दौड़ में कौन कौन शामिल हैं, जानेंगे हसन रजा की इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात के बाद पंजाब की मतवक्की काबीना के लिए भी नाम ज़ेर गौर मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी, जबकि 30 रुकनी सूबाई काबीना बनाए जाने का इम्कान है। पुराने चेहरों के साथ साथ काबीना में नौजवान चेहरे लाने का भी फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक, फैसल अयूब को सूबाई वज़ीर बनाए जाने का इम्कान है। बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नज़ीर, असम बुखारी, ज़किया शाहनवाज को भी वजारत देने पर गौर, मियाँ मुश्तबा शिजाउर रहमान को भी सूबाई वज़ीर बनाए जाने पर गौर किया जा रहा है। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद भी सूबाई वज़रा के दौड़ में शामिल हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पंजाब काबीना में शामिल करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात कामयाब होने पर उन्हें 3 सूबाई वज़ारतें देने पर गौर होगा। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुतवक्के विफाकी काबीना के नामों पर गौर शुरू कर दिया। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम ज़ेर गौर हैं। MQM को 3 से 5 वज़ारतें देने पर गौर किया जा रहा है। हतमी फैसला आइंदा चंद रोज में किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ इत्तेहादियों से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से वज़ीर आज़म का हतमी फैसला होने के बाद मुतवक्के विफाकी काबीना के नामों पर गौर शुरू कर दिया गया। मुतवक्के विफाकी काबीना के लिए अहम अफराद के नाम ज़ेर गौर हैं। 25 रुकनी विफाकी काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान है। MQM को 3 से 5 विफाकी वज़ारतें दिए जाने पर गौर किया जा रहा है। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सतार, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सैयद अमीनुल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन के नाम ज़ेर गौर हैं। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम विफाकी वज़रा के लिए ज़ेर गौर हैं, जिनमें इसहाक डार, सरदार अय्याज सादिक, ख्वाजा आसिफ शामिल हैं। एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़, शिजा ख्वाजा, रियाजुल हक जज, बिलाल अजहर कियानी के नाम भी ज़ेर गौर हैं। सरदार अवैस खान लगारी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा कमरुल इस्लाम, राना तनवीर हुसैन के नाम भी शामिल हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि हतमी फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लाहौर के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन हारने वाले लीगी रहनुमा ज़िमनी इलेक्शन में पंजा आजमाई करेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह और अली परवेज़ मलिक को मैदान में उतारे जाने का इम्कान है। शुएब सिद्दीकी भी ज़िमनी इलेक्शन के महाज पर नंबरदाज़मा होंगे। लाहौर के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां शुरू। शहबाज शरीफ ने कसूर की कौमी असम्बली की नशिस्त रखी तो लाहौर के 6 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होगा। मरियम नवाज NA 119 जबकि शहबाज शरीफ PP 158 और 164 वाली सीटें छोड़ेंगे। हमजा शहबाज के PP 147 और अब्दुल अलीम खान के PP 149 वाली नशिस्त छोड़ने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून की हाई कमान के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से फैसले। NA 119 पर अली परवेज़ मलिक को ज़िमनी इलेक्शन लड़ाया जाएगा। वो साबिक मेंबर कौमी असम्बली के अलावा मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम के चीफ ऑर्गेनाइजर भी रहे। अब्दुल अलीम खान की खाली करदा PP 149 की नशिस्त पर शुएब सिद्दीकी को इलेक्शन लड़ाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात में हारने वाले सीनियर रहनुमाओं ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह को भी ज़िमनी इंतखाबात के मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के इलेक्शन 2024 इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल प्रोफेसर्स के 2 ग्रुप्स में
मैदान कल सजने जा रहा है। एकेडमिक फ्रंट पैनल और काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल्स मद्दे मुकाबिल होंगे। पोलिंग 15 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के 1040 लेक्चरर्स और इसके अलावा असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर्स वोट देंगे। अहवाल जानेंगे सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के इलेक्शन 2024 जो है वो उसका मैदान कल सजने जा रहा है और एकेडमिक फ्रंट पैनल से डॉक्टर अजहर नईम चौधरी और काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल से के सदर के उम्मीदवार डॉक्टर अमजद मगसी जो है वो नामजद किए गए हैं। सेक्रेटरी की सीट पर बिलतरतीब मुनव्वर इकबाल और डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम जो है वो मद्दे मुकाबल होंगे। नायब सदर साइंस की सीट पर मलिहा अरूस और फरा रऊफ शकूरी, 2 खवातीन के दरमियान कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। एग्जीक्यूटिव मेंबरान की 8 सीटों पर से 16 के करीब जो उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबल होंगे। पोलिंग 15 फरवरी कल बरोज जुमेरात सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जो है जारी रहेगी और पंजाब यूनिवर्सिटी के 1040 लेक्चरर, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर अपना राय हक दही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जी ठीक है सज्जाद, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और बदलते मौसम की बात करें, आपको बताएं कि शहर का मौसम जुज़वी तौर पर खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 19 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा सेहत का मौसमियात का कहना है कि 19 और 20 फरवरी को बारिश की पेशगोई कर दी गई है। मौसम की सूरत हाल से मुतल्लिक जानेंगे। मोहम्मद अली हमारे साथ हैं। अली, मौसम का अहवाल बताइए। जी, शहर लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। अगले 24 घंटे के दौरान जो दर्जा हरारत वो तकरीबन 25 डिग्री तक ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री तक सुबह पे वक्त रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासिब 39% बताया जा रहा है और इस वक्त हवा तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। अगर बात की जाए बारिश की तो 19 और 20 फरवरी को कहा गया कि लाहौर समेत गिरदोनुमा में बादल आएंगे। अगर बादल बरसते उस सूरत के अंदर फरवरी का जो आखिरी हफ्ता, आखिरी 10 दिन वो अच्छे गुजरेंगे। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज सुबह नमाज फजर के बाद 4 बजे के बाद कहा जा रहा है कि धुंध झुंध सी मैदानी इलाकों में छाई रहेगी। नारोवल, इसी तरह अतराफ की जितनी भी वादियाँ हैं, सियालकोट साइड पर सरूर साइड वहाँ पर धुंध पड़ेगी और इसी तरह जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में कहा जा रहा है कि धुंध पड़ेगी, लेकिन बारिश इन इलाकों में नहीं है। बारिश की शदीद जो है वो 19 फरवरी को शुरू होगी। कहा जा रहा है कि बादल 19 फरवरी को लाहौर में गिरदोनुमा में दाखिल होंगे, जो 19 और 20 की फरवरी की दरमियानी शब में बरसेंगे। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। लेकिन महकमा मौसमियात ने यह कहा कि मौसम इस बारिश से मजीद बेहतर होगा। अगर बात की जाए दिन के औकात की, तो दिन के औकात में अब धूप निकलना शुरू हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का आज भी 200 से ज़ायद रहा है। इस वक्त तकरीबन 186 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कहा जा रहा है कि दिन के औकात में इसमें कुछ हद तक इजाफा होगा, जो 225 से लेकर 260 तक भी जा सकता है। खबर है कि आम इंतखाबात में मुंतखब होने वाले 9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। 22 इश्तिहारी रहनुमा और 282 कारकुन ताहाल इंतहाई मतलूब हैं। मुजाहिद शेख की रिपोर्ट। हालिया इलेक्शन में मुंतखब होने वाले 9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार। JIT हुकाम के मुताबिक कामयाब उम्मीदवार असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर और इम्तियाज शेख 9 मई के वाक़यात में पुलिस को मतलूब हैं। JIT ज़राए से मालूम हुआ कि अदालत की जानिब से असलम इकबाल, इम्तियाज शेख और अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। इश्तिहारियों की जियो फेंसिंग, मोबाइल ट्रैकिंग और IP एड्रेस ट्रैक कर लिए गए हैं। इंतखाबात में सीट हासिल करने वाले इश्तिहारियों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक होगी। ज़राए से ये भी मालूम है कि मुल्ज़मान इंतखाबी मुहिम और नताइज के दौरान कारकुनों से मुसलसल राबिते में रहे और 9 मई के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों को कटहरे में लाने के लिए कार्रवाइयाँ तेज की जा रही हैं। इश्तिहारियों की लोकेशन के लिए FIA और दीगर इदारों की मदद ली जा रही है। 9 मई के मुकदमात में मुलव्विस 22 इश्तिहारी रहनुमा और 282 कारकुन ताहाल इंतहाई मतलूब हैं। फिल वक्त इतना ही।